lecture. Good morning, students. I welcome all of you once again on the YouTube channel of Government College Hadol. So, in previous lecture, we were discussing or we were reading the poem The Tiger, and we left the poem in between, and I promised you that I will complete the poem in following lecture. So in this lecture we will continue the poem. So in previous lecture we have read 3 stanzas of this poem, and 3 stanzas are still remaining. So let's start with the 4th stanza, and the 4th stanza reads: what the hammer, what the chain, in what furnace was thy brain? Once again we can see a great rhyme scheme: chain, brain, grasp, clasp. Then there is a spears, tears, she, thee, bright, night, I, and symmetry. Okay, so what the hammer, what the chain, in what furnace was thy brain? तो ये कह रहा है कि what kind of hammer was used, and what the chain, in what furnace was thy brain? So here we can get some idea that here he is using some industrial vocabulary. Okay, hammer किसी इंडस्ट्री में काम आता है, chain, furnace. Okay, then there is grasp and clasp, anvil. These are industrial these are part of industrial vocabulary, जो कि क्या किए जाते हैं, इंडस्ट्रीज में काम में लिए जाते हैं. So what the hammer, what the chain, in what furnace was thy brain? ये कह रहा है कि किस तरह के hammers, किस तरह के tools were used in making of the tiger. Okay, किस तरह के टूल्स काम में लिए गए थे, किस तरह की चैन काम में ली गई थी जिसको टाइट बांधने के लिए. इन वॉट फर्नेस वाज दाई ब्रेन, और किस तरह की भट्टी में या फिर फ्रोज में तुम्हारे ब्रेन को ढाला गया था. इन द प्रीवियस स्टेंजा ही वाज टॉकिंग अबाउट द मेकिंग ऑफ हार्ट. नाउ ही इज टॉकिंग अबाउट द मेकिंग ऑफ ब्रेन. ठीक है, कि किस तरह से तुम्हारे ब्रेन को सांचे में ढाला गया था. वोट द एनविल, किस तरह की एनविल होती है. एनविल होता है जो लोहार जो होता है वो जिस पे रख के किसी चीज़ को कूटा जाता है. मतलब जिस भी चीज़ के को मतलब जो नीचे का जो सरफेस होता है जिसके ऊपर किसी वस्तु को रख के या फिर किसी भी लोहे की धातु या फिर किसी अन्य धातु को कूट पीट के सांचे में ढाला जाता है. तो नीचे का जो हिस्सा होता है उसको क्या कहा जाता है, एनविल कहा जाता है. वोट ड्रीड ग्रास्प, और कितनी साहस भरी कोई ग्रास्प रही होगी. डेयर, इट्स डेडली टेरर क्लास्प, एंड और तुम्हारे और उन्हीं ग्रास्प से निकल के आई होगी तुम्हारे अंदर क्या, क्लास्प करने की या फिर किसी चीज़ को पकड़ने या फिर किसी चीज़ को होल्ड करने की जो मजबूती वो रही होगी, या फिर जिसने तुम्हें बनाया है उसमें कितनी ताकत रही होगी कि वो इतनी भयानक चीज़ को क्या कर सके, ग्रास्प कर सके और क्लास्प कर सके. ओके, सो हियर इन दिस stanza we are getting another example of alliteration. Dare, it's deadly, dare and deadly. Here we are getting again the repetition of the sound. Okay, let's switch to 5th stanza. When the stars threw down their spears and watered heaven with their tears. When the stars threw down their spears. Here he want to say that when you were mad, your heart and your brain become alive and you started to take breaths and you get some breathing or heartbeats, then the stars threw down their spears. जो स्टार्स जो हैं उन्होंने अपने जो स्पीयर्स है उनको नीचे फेंक दिया था. एंड वाटर्ड हेवन विथ देयर टीयर्स, एंड दे वाटर्ड द हेवन विथ देयर टीयर्स. उन्होंने अपने आँखों से, अपने आंसुओं से उस पे बरसात कर दी थी, समुद्र पे बरसात, मतलब सॉरी स्वर्ग पे बरसात कर दी थी. तो हियर वी कैन गेट एन आइडिया दैट either these stars were
too happy, so happy, or maybe they were too sad, or they were fearing, वो डरे हुए थे, या फिर उसकी खुशी में उन्होंने शायद आंखों से आंसू बहाए होंगे। लेकिन आंसू यदि बहाए हैं तो डेफिनेटली या तो डर या फिर किससे बहाए होंगे, दुख के लिए ही बहाए होंगे। Now the main question arises here, did he smile his work to see? Did he? Here he mean the creator, the God, the supreme power. So here the writer asking to the tiger that was our supreme power happy seeing you breathing or alive? तुम्हें जिंदा देख के और तुम्हें बना हुआ देख के, तुम्हारा जो वर्तमान स्वरूप देख के क्या वो खुश हुआ था क्या? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। उसके चेहरे पे मुस्कान आई थी क्या? ये सवाल पहला सवाल है। डिड ही हु मेड द लैम्ब मेक दी? एंड दिस इज ए पर्सनल क्वेश्चन फ्रॉम द टाइगर, दैट जिसने भेड़ के बच्चे को बनाया है, जिसने मेमने को बनाया है, क्या उसी ने तुम्हें बनाया है? ठीक है। सो द राइटर इज आस्किंग अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। मैं यही कहूँगा कि यहाँ जो राइटर है, ही इज क्वेश्चनिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, कि हाउ कैन ए पर्सन हु मेड दिस लैम्ब कैन मेक a creature like tiger? On one hand, the tiger is a symbol of power, cruelty and fearlessness, and on the other hand, the lamb is symbol of innocence. So how can a single person can make these two tropical creature फॉर दिस इस दुनिया में रहने के लिए उसे ये जो दो चीज़ें बनाई हैं, एक तरफ उसने टाइगर को बनाया है और दूसरी तरफ उसने किसको बनाया है? लैम्ब को बनाया है। तो क्या एक ही इंसान जो ऐसी निर्दयी चीज़, ताकतवर चीज़ और पावरफुल चीज़ जो बनाई है, वैसा ही इंसान क्या मेमने को बना सकता है? ये फिर पहला सवाल ये है कि क्या जो मेमने को बना सकता है वो एक टाइगर को बना सकता है क्या? और यदि वो बना सकता है तो उसके दिमाग में क्या सोचा होगा? क्या उसके दिमाग में आया होगा कि उसको जो देखो यहाँ कहीं लिख रखा है, ऑन वोट विंग्स डेयर ही एस्पायर, उसके दिमाग में क्या ख्याल आए होंगे, उसके क्या अरमान रहे होंगे, या फिर उसने क्या सोच के एक टाइगर को बनाया है? यदि उसने पहले क्या बना चुका है, वो यदि लैम्ब बना चुका है, तो उसके दिमाग में कैसे ख्याल आए होंगे, या फिर उसने कैसी दुनिया सोची होगी? एक जंगल में दोनों रहेंगे, एक तरफ कौन रहेगा? लैम्ब रहेगा, और दूसरी तरफ कौन रहेगा? टाइगर रहेगा। ठीक है, दोनों क्रिएशन किसके हैं? भगवान के हैं। और टाइगर जिंदा किस पे रहेगा? लैम्ब को मार के ही टाइगर जिंदा रह सकता है। यदि वो एग्जिस्ट नहीं करता है तो टाइगर भी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं ये कह रहा है, द गॉड हैज बीन बायस्ड विथ द इनोसेंस। भगवान ही चाहता है कि इस दुनिया में क्या रहे? इविल है वो एग्जिस्ट रहे। तो अब इसके हम अलग अलग मतलब निकाल सकते हैं। पहले चलो हम इसको ख़त्म करते हैं, इस कविता को ख़त्म करते हैं, उसके बाद में आगे हम बात करेंगे कि क्या कहना चाह रहा है। सो द लास्ट लाइन इज द लास्ट स्टेंजा इज द रिपीटेशन ऑफ द फर्स्ट स्टेंजा। ओके, द टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, व्हाट इमॉर्टल हैंड्स और आईज और आई देयर frame thy fearful symmetry. So the question is once again unanswered. The writer has left us unanswered. Neither the writer has given any answer nor the tiger. ना चीते ने कोई जवाब दिया है, ना किसी राइटर ने, ना ही इस राइटर ने हमें ये कोई जवाब दिया है कि किसने क्या बनाया है और क्या सोची है और किस तरह से और कैसे कैसे क्या बनाया है। ठीक है, ये सवाल अनफिनिश्ड है। सो हियर वी कैन गेट सेवरल इंटरप्रिटेशंस कि इस दुनिया में अच्छाई बनानी है और बुराई बनानी है। ठीक है, अच्छाई बनाने के लिए
अच्छाई को दिखाने के लिए बुराई का होना ज़रूरी है और बुराई को दिखाने के लिए अच्छाई का होना ज़रूरी है। ये एक हमारा एक इंटरप्रिटेशन ये भी हो सकता है। इस कविता का मतलब ये भी हो सकता है कि एक जगह पे यदि दो अच्छाइयाँ और बुराइयाँ यदि साथ में रहेंगी तो ही अच्छाई का पता चलेगा, और बुराई रहेगी तो हमें अच्छाई का और अच्छाई होगी तो हमें बुराई का पता चलेगा। ठीक है। एंड देन देयर इज अनदर इंटरप्रिटेशन ऑफ इट, that the poem contains its subject material, that it is questioning about the nature of God who created this world. इस भगवान ने इस विश्व को बनाया है, and he takes and the writer talks about these two different creations. One is tiger and then there is a lamb. So one represent the innocence and second represent the cruelty and the power. Okay, so हम देखते हैं इस दुनिया में पावरफुल लोग हैं, गरीब हैं और अमीर हैं। वहीं कुछ लोग पावरफुल हैं, कुछ लोग वीक हैं। हम देखते हैं कुछ लोग मास्टर हैं, कुछ लोग स्लेव्स हैं। तो मास्टर लोगों को भी भगवान ने बनाया है और स्लेव लोगों ने भी भगवान ने बनाया। तो भगवान ने ऐसा क्यों किया है? यदि ऐसा किया है तो कहीं ना कहीं भगवान बाइस्ड है, क्योंकि एक गरीब या फिर एक मासूम या फिर एक अपराधी को बनाने वाला और एक पीड़ित को बनाने वाला, यदि दोनों ही भगवान के काम है तो कहीं ना कहीं भगवान हमारे सामने क्या है? बाइस्ड है। एंड उसका अस्तित्व के बारे में बात करना तो चलो हमारे बस की बात नहीं है, बट हियर इन दिस पोएम the writer wants to question the existence of God. And the real and the great question is that why does God allow evil to exist in this world? यदि भगवान ही है इन सारी चीज़ों के पीछे करने वाला, तो क्यों वो अमीर और गरीब बनाता है? क्यों वो किसी को दास बना देता है? क्यों किसी को स्लेव बना देता है? क्यों किस तरह से लोगों पे अत्याचार होते हैं? क्यों किस तरह से लोगों के साथ बलात्कार होते हैं? क्यों किसी तरह से हत्याएं होती हैं? क्यों इससे पहले दास प्रथा थी अमेरिका में या फिर विश्व के कई और हिस्सों में जहां दासों को बेच दिया जाता था, जहां माँ को अपने बच्चों को दूध तक नहीं पिलाया जाता था और उन भेड़ बकरियों की तरह मार्केटों में बेच दिया जाता था। किस तरह से हम हमारे भारत की बात करें तो किस तरह से बहुत सारी जो कम्युनिटीज़ थी या फिर बहुत तरह की जो कास्ट थी उनके प्रति अत्याचार किए गए। तो ये सारी चीज़ें यदि भगवान की है तो कहीं ना कहीं भगवान बाइस्ड है। ओके, सो दिस पोएम ओपन्स ए क्रिटिकल फैकल्टी फॉर मैनी ए क्वेश्चन, एंड आई थिंक इन दिस लेक्चर और सिटिंग इन दिस क्लास वी कैन नॉट आंसर दिस क्वेश्चन, वी कैन जस्ट रेज ए क्वेश्चन, इज गॉड बाइस्ड? Why does God allow evil to exist? Or the final question, does God exist? क्या भगवान का कोई अस्तित्व है भी क्या? So this is a poem and that is all. Thank you.